Nobody in this world can motivate anybody. एक वो होते हैं जो सोचते हैं कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम बड़े बन जाएंगे, हम जीवन में कुछ कर पाएंगे, हम आगे निकल जाएंगे। और बाकी वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। जो बड़ा सोचते हैं वो बड़ा बन जाते हैं, जो छोटा सोचते हैं वो छोटा बन जाते हैं। रूल इज वेरी वेरी सिंपल। सबसे मुश्किल काम होता है पहला स्टेप उठाना। When you take the first step, the rest of the steps are much easier. One new thing must be learnt every day. If you have not learnt it, you have wasted the day. ये नई जनरेशन है सर, हम इन पे अपने वैल्यूज नहीं थोप सकते। हम नहीं कह सकते कि 4 बजे उठ के ही आप सक्सेसफुल होगे, राइट? आप 8 बजे उठ के भी सक्सेसफुल हो सकते हो, बट फिर जब उठो तो फिर उठने के बाद उसी उड़ान और उसी दौड़ के साथ चलो जो कि सक्सेस के लिए चाहिए। और it's always a great pleasure to come to this wonderful campus, and it's been a few years gap because I couldn't come. Corona really disrupted the way we all were working, and coming back after a long time and meeting the smiling Nitesh ji and Rajneesh, who is an alumnus of our department, has been a great pleasure. Although the schedule for today is really very, very busy, but then again, you know, there are some people whom you can't say no, and Rajneesh is one of them. So he really literally forced me that, sir, you have to come to the institution. I said, okay, when you say yes, then I'll definitely come. I said, what do you want me to talk? He said, sir, we are starting the session, and in this session, we want you to please talk about motivation. Can I stand up and talk, you know, because... Stage is yours. yeah. Usually I don't like to sit and talk. Teachers को चलते फिरते बात करने की habit होती है, right? So we feel more comfortable when we are standing. Maybe when it's a question answer session, we can sit down, right? Yeah. So you know, the real motivation from the students, for the students, or not only just students, for everybody comes from within, right? Nobody in this world can motivate anybody. It is only and only we who can motivate ourselves. Remember the scene of Mahabharata. At a time when Arjuna was standing, right? He told Shri Krishna to take the chariot between the fighting armies so that I can clearly see the strategic positions of where people are standing. And when he saw his own kinsmen, right? His own relatives, his own teachers standing before him to fight, and he has a mandate to kill all of them, he lost the self-confidence, right? He lost the motivation to perform. Imagine world's biggest warrior, right? Most talented warrior of the world has lost not his talent, but his thoughts, his motivation. And at that time, Lord Krishna gave him the message of Srimad Bhagavad Gita and told him that his right is only and only to work, and he is not to be worrying about the fruits. And the result was that he got the motivation back. I'm not going into these details. He got the motivation back. Lord Krishna had offered help of two types. Both Duryodhana and Arjuna came to Lord Krishna seeking help. So Lord Krishna said, okay, I'll give you help in two forms. On one side, my army will be there, right? Now Lord Krishna's army was Chaturangi Sena, right? It's a huge army. It was very well equipped and very talented and very motivated and very brave army. And it's an army which is going to help you in fighting the war. Duryodhana said, sir, give me the army, right? Because after all, war has to be fought with the people. So give me the army. And Arjuna said, no, I want Krishna. He said, see, I am not going to fight myself. I am not going to shoot even a single arrow, right? My Sudarshan Chakra will be lying dormant. I am not going to do anything. Still you want me? He said, yes, sir, I want you only. Why? Because he knew that the brain behind any war is going to be Lord Krishna, right? So, one Lord Krishna helped the Pandavas to win the battle of Mahabharata, right? And what Lord Krishna did was, he did not really fight with the weapons, but he fought with the mind, right? He organized the thoughts, made the strategies, guided the warfare tactics, and finally led the Pandavas to victory. Rules of success are the same.
We succeed or we fail just and just because we think that we are going to fail. We succeed when we think we will succeed, we succeed, right? हमारे देश में एक समय वो भी था कि जब हमारा समाज अपना आत्मविश्वास खो बैठा था, राइट? हमारा समाज कई हजार साल तक गुलाम रहा। उस गुलामी ने हमारे आत्मविश्वास पे चोट करी और हम बड़े डरपोक किस्म के एक समाज बन गए। हर चीज से डरने लगे हम, राइट? उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें राह दिखाई कि नहीं, आप किसी चीज से मत डरो, आप 3 काम करो, नाम जपो, किर्त करो और वंड छको, राइट? ही टॉट दीज 3 थिंग्स। उन्होंने एक ही काम किया कि इस मरे हुए समाज की मोटिवेशन लेवल को बढ़ा दिया, उसके सोचने के तरीके को बढ़ा दिया। एंड द रिजल्ट वाज दैट दीज पीपल फॉट विद द माइटिएस्ट एम्पायर ऑफ मुगल्स। मुगल्स वर द बिगेस्ट एंड द माइटिएस्ट एम्पायर्स ऑफ दोज टाइम्स in the whole world, right? They were mightier than any other king in this world. And the people who were afraid of them stood against the tyranny, and they really were able to achieve what they wanted to do that. And how was this possible? It was just possible because of the self-confidence, and it was not like a medicine which was given to them. It was only and only churning the thoughts, having a new way of thinking, which was taught to these people who were so afraid of the things around them, right? So my dear students, दुनिया में 2 ही किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सोचते हैं कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम बड़े बन जाएंगे, हम जीवन में कुछ कर पाएंगे, हम आगे निकल जाएंगे। और बाकी वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। जो बड़ा सोचते हैं वो बड़ा बन जाते हैं, जो छोटा सोचते हैं वो छोटा बन जाते हैं। रूल इज वेरी वेरी सिंपल. God has given us this thought, right? So if you want to grow big, think big. And when you will think big, you will grow big. Why? Because you will keep higher goals, you will take higher risks, you will have more resources, and you know, when you take the first step, सबसे मुश्किल काम होता है पहला स्टेप उठाना. When you take the first step, then rest of the steps are much easier, right? Rest of the steps are much easier. तो पहला स्टेप आपने अपनी हिम्मत से, अपने जोश से, अपने जज्बे से उठाना है। उसी को उठाने के लिए बड़ी मुश्किल होती है, बट जब आपने वो उठा लिया तो मैं समझता हूं उसके बाद आगे तो चीजें चल पड़ती हैं। तो इसलिए व्हेन यू आर जॉइनिंग द इंस्टीट्यूट फॉर द फर्स्ट डे, राइट, टुडे इज योर फर्स्ट डे, आई सपोज यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर सेशन, you may be in the first year, you may be in the second year, you may be in the final year, right? So it's the first day of the academic session. On the first day of an academic session, set yourself a huge goal that this is what I want to achieve, right? And when you will do this, slowly start working towards that. Make tangible plans for what you want to achieve, measurable plans for what you want to achieve, and I am 100% sure that by the time you will pass out from this very session, right, you will say that my dreams have come true, I have been able to achieve what I wanted, right? So this is what is the secret of success. Can you put the next slide, please? Next. This is a study which was done in US by Vincent Tinto, right? In this study, it's a very landmark seminal book. नितेश जी, इसको आप ध्यान से सुनिए। ये वो किताब है जिसमें उन्होंने बहुत बड़े लोगों से, स्टूडेंट्स के सैंपल से सर्वे किया कि व्हाई स्टूडेंट्स लीव देयर स्टडीज, लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं, व्हाई दे डोंट कंप्लीट देयर स्टडीज, राइट? व्हाट आर द रीजंस व्हाई पीपल डोंट सक्सीड आफ्टर एजुकेशन आल्सो? वो पढ़ जाते हैं फिर भी वो सक्सीड क्यों नहीं करते? तो देयर वर सर्टेन पैटर्न्स व्हिच वर कमिंग, राइट, दैट व्हाई पीपल लीव. फर्स्ट रीजन इज इंटेंशन, राइट? First reason is intention. Intention is the absence of goals, right? हमारे जब स्टूडेंट आते हैं, आप उनसे पूछते हो कि आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया, तो शायद उनके पास एक जवाब नहीं होता, क्लियर कट जवाब नहीं होता, राइट? तो जब तक उनके पास वो गोल नहीं होगा, हमारे यहाँ पे एक्चुअली एडमिशन का तरीका थोड़ा अलग है, राइट? हम एडमिशन करते हैं मेरिट पे, क्योंकि हमारे यहाँ सीटें कम हैं, राइट? हमारे यहाँ पे एप्लीकेंट ज़्यादा हैं और उसमें कोई अपना प्रेफरेंसेस ना हो, इसके लिए हम कहते हैं भी क्वालिफाइंग एग्जाम में जिसके जितने नंबर हैं या एंट्रेंस में जिसके ज़्यादा नंबर हैं उसको एडमिशन दे दो, जिसके कम है उसको ना दो, राइट? हम ये जज नहीं करते कि इंटरेस्ट क्या है बच्चे का, राइट? उसके गोल्स क्या हैं।
अगर आप लोग विदेश में एडमिशन ले रहे हो, सम ऑफ योर फ्रेंड्स माइट बी टेकिंग एडमिशन इन फॉरेन कंट्रीज, वहां पर एक डॉक्यूमेंट देना होता है, उसे कहते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, राइट? और दूसरा लेटर देना होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सुना आपने नाम? सब बच्चों ने सुना होगा, पर सर जिस तरह से वो बन रहा है ना, वो बड़ी गड़बड़ वाला मामला है। हाँ, आपके पास मेरे ख्याल 10-20 रोज आ जाते होंगे, लो सर LOR बना दो जी। हाँ, आपने भी बना बनाया सेट पैटर्न लिख रखा होगा, और उसकी कोई फीस रखी होगी, वो ली और अपना स्टैंप मार के पकड़ा दिया, राइट? और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो एजेंट्स ने बना रखे हैं। अभी आप तो फिर ठीक हो सर, हमारे साइन स्कैन होके ना पता नहीं कहाँ लग के कौन से डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते हैं। एक बच्चे का था डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, नीचे सिग्नेचर तेजेंद्र शर्मा के हो रखे। मैंने कहा वाह जी, वो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास आ गया कि सर ये आपने साइन करे थे। खैर एनीवे वी आर डाइवर्टिंग, राइट? तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिक होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक कोर्स के लिए स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं होता कि LOR इज अ जनरल डॉक्यूमेंट एंड यू कैन जस्ट से गेट इट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एंड सबमिट इट टू एनी प्लेस। इट इज नेवर रिटन एज टू whomsoever it may concern. It is written very specifically to a university, to a professor even, right? And secondly, it is also your statement of purpose. वो भी आपको खुद बनानी होती है, in which you try to seek answer to why I want to do this course, right? So the first important thing that, sir, if you want the success to come out of this great institution, पहली चीज है बच्चों का गोल निर्धारण में इनको मदद करिए। हमारे यहाँ पे स्कूल से बच्चा रॉ आता है, एक दुखदाई स्थिति है कि स्कूल से बच्चा रॉ आता है, उसे क्लैरिटी नहीं होती कि उसे क्या करना है, राइट? तो और वो एडमिशन ले लेता है किसी कोर्स में। तो जब वो किसी कोर्स में एडमिशन ले लेता है, उस वक्त उसके पर्सनल गोल्स और उस एकेडमिक प्रोग्राम के गोल्स की इंटीग्रेशन आपने करनी है अब, क्योंकि हमारा सिस्टम अलग है, इंडिया अलग है और विदेश अलग है। तो हमें यहां पर पहली चीज करनी है कि वी हैव टू अलाइन द पर्सनल गोल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। सेकंड थिंग दैट वी हैव टू डू इज द विलिंगनेस, राइट? वी हैव टू क्रिएट ए विलिंगनेस इन द स्टूडेंट्स टू लर्न, राइट? कि बच्चे स्वयं कुछ नया सीखना चाहें। बड़ी खुशी सी हो रही है मुझे देख के कि आपने कहा कि गेस्ट लेक्चर है और उसमें इतने सारे बच्चे आ गए। हमें तो पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ता, धमकी दे देंगे बैठो अंदर, नहीं तो हम तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट कर देंगे। ऐसा तो नहीं है ना आपके साथ? तो आप तो खुद आए हो ना? गुड, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, अच्छी बात है। खैर थोड़ा सा तो देखो डंडा भी चलाना पड़ता है समय समय पे, तो बट कमिटमेंट इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो वी हैव टू गिव कमिटमेंट टू दी स्टूडेंट्स। ये पर्सनल मैनेजमेंट में एक इंडक्शन का एक फेज होता है, तो सर इस पे काम जरूर करना हमको पड़ेगा, चाहे आपका कॉलेज हो चाहे हमारी यूनिवर्सिटी हो। एवरीवेयर वी विल हैव टू नाउ वर्क ऑन दीज थिंग्स सो दैट स्टूडेंट्स रियली अचीव देयर ड्रीम्स। देन एडजस्टमेंट, राइट? एंड ऑल्सो डिफिकल्टी, सब्जेक्ट्स को समझने में बच्चों के स्लो लर्नर्स, फास्ट लर्नर्स होते हैं। तो दीज आर द रीजंस व्हाई समटाइम्स स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म। So we have to find solutions on how to make them perform. Next slide please. तो सक्सेस जो है इसका एक प्रोसेस होता है। How success comes to you? Success doesn't come overnight. ऐसा नहीं होता कि हम सो के उठे सुबह और आज सक्सेसफुल हो गए। No. Success passes through some stages. The first stage of success is the goal identification. आपको अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए कि आज 2023 है, 2030 में मैं कहां होऊंगा या होंगी। Where do I see myself in terms of my career, right? In terms of my personal life, in terms of say my social life. Where is it that I want to see myself in 5 years time, in 10 years time and in 25 years time, right? So we must have short term goals, we must have say medium term goals, as well as we must have long term goals. कि भाई हमारे पास अगले 5-5 साल में हमारे जीवन में कौन कौन से इंक्रीमेंटल चेंजेस आने चाहिए, राइट? तो गोल आइडेंटिफिकेशन आई थिंक सो ऑल ऑफ यू मस्ट डू। स्टूडेंट्स, आप लोग डायरी लिखते हो? नहीं लिखते? हाँ सर, हमारे जमाने में ना डायरी लिखने का बड़ा रिवाज होता था, डियर डायरी करके हम लिखते थे। हाँ, और अपने आप से बातें करते थे। हाँ सर, ये बच्चे बड़े क्रिएटिव हैं, मैं इस जनरेशन का फैन हूं, सीरियसली, कसम से। ये रील बनाते हैं जो हम और आप नहीं बना सकते चाह कर भी, है ना? तो बच्चों रील बनाओ।
रील बनाओ थोड़ी लंबी वाली, उसकी सेटिंग्स में सिर्फ इतना कर लेना कि ओनली मी, भी किसी और को ना दिखे, वो आपको खुद को दिखे वो, राइट। एक रील अपने लिए रोज बनाया करो, अपने आप को कह के सोया करो, अपने से बातें किया करो, और उसे चाहे आप कागज पेन तो आपने पकड़ना नहीं, राइट, चाहे नोटपैड में लिख लेना आईफोन के, राइट, चाहे किसी अपने आप को व्हाट्सएप कर लेना, राइट। हाँ, ऐसा भी होता है ना, आप तो अपने आप को भी कर सकते हैं व्हाट्सएप, बट कहीं ना कहीं अपने गोल्स को जरूर लिखो, राइट, कि व्हाट इज इट दैट आई वांट टू अचीव, व्हाट इज इट दैट आई वांट टू अचीव। बिल्कुल रील देखो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है, पर उसमें इंपॉर्टेंट है क्या देख रहे हो रील में, राइट। तो इफ यू आर वॉचिंग द राइट रील्स, आई थिंक सो यू विल बी अचीविंग योर गोल्स। हमें डाइवर्ट क्या करती हैं, घंटे तो सबके पास 24 ही हैं, और सर कभी इनसे पूछना कि बच्चों अपना फोन खोलो और इसमें मुझे जरा स्क्रीन टाइम दिखाओ कि तुमने सुबह से अभी क्या 11 बजे 10 बजे है ना, तो तुमने कितना स्क्रीन टाइम चलाया है। तो सर एवरेज आपको 3 घंटे मिल जाएगी अब तक, राइट। अभी तो ये बड़े अच्छे बच्चे हैं जो शायद बहुत जल्दी 8 बजे उठ गए होंगे, राइट। तो है ना, तो स्क्रीन टाइम हमारा, हमें गोल आइडेंटिफिकेशन करनी है। ये नई जनरेशन है सर, हम इन पे अपने वैल्यूज नहीं थोप सकते। हम नहीं कह सकते कि 4 बजे उठ के ही आप सक्सेसफुल होगे, राइट। आप 8 बजे उठ के भी सक्सेसफुल हो सकते हो, बट फिर जब उठो तो फिर उठने के बाद उसी उड़ान और उसी दौड़ के साथ चलो जो कि सक्सेस के लिए चाहिए। Got it? So first is goal identification. Second is strengthening the commitment towards goal. ऐसा नहीं कि लक्ष्य बना लिया मुझे ये करना है, राइट। अपने आप को हमें हर रोज कहना पड़ता है कि मुझे ये करना है। Got it? You have to really reinforce your thoughts. You have to give an auto suggestion to yourself. You have to tell every day, right? एक होता है ना मंत्र जपते हैं हम लोग, वो मंत्र क्यों जपते थे, क्या कारण होता है, कहते हैं जी मंत्र जपो आप। ऐसा नहीं होता कि वो कोई उसमें से वाइब्रेशंस निकलती हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। मंत्र आपको रीइंफोर्स करता है, आपकी थॉट्स को बार बार बताता है कि दिस इज व्हाट इज द मैसेज दैट इज कन्वेड इन दिस लाइन। तो आपको अपनी थॉट्स को बार बार रीइंफोर्स करना पड़ता है, सो दैट योर कमिटमेंट टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, टुवर्ड्स योर गोल्स इज इंक्रीज्ड एवरी डे। आप हर रोज एक नई ताकत से, एक नई ऊर्जा से अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते जाएं, राइट। सो यू हैव टू रियली स्ट्रेंथन द गोल्स, राइट। सो वंस यू स्ट्रेंथन द गोल्स, योर कमिटमेंट टुवर्ड्स गोल्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज टू कम इज चेंज इन बिहेवियर। चेंज इन बिहेवियर। जब बच्चे पास आउट होके जाते हैं तो आप उनसे पूछते होंगे कि आपने यहां से क्या सीखा। नहीं पूछते तो ये प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। एक एग्जिट इंटरव्यू होना चाहिए बच्चों का, राइट। एक एग्जिट इंटरव्यू लीजिए, लास्ट एग्जाम हो जब, एक छोटा सा गेट टुगेदर रखिए बैच का, चाहे उनका सबसे क्लोज टीचर ले या चाहे कोई भी ले उनसे, बट वी मस्ट रियली आस्क द स्टूडेंट्स कि आपने यहां से क्या सीखा। स्टडीज तो सीखी आपने, दैट इज मेंशन्ड ऑन द डीएमसी, बट बिसाइड्स दिस आपके बिहेवियर में क्या कोई चेंज आया। हम पूछते हैं कई बार स्टूडेंट से, तो सम ऑफ द आंसर्स दैट वी गेट आर लाइक, यस सर आई बिकेम मोर पंक्चुअल, राइट, I became more punctual, I became more disciplined, right? अब ये चीजें, ये छोटी छोटी बिहेवियरल चेंजेस ही तो हैं। एक नई चीज अगर हर रोज सीख लो, वो कुछ भी हो सकती है, राइट। One new thing must be learnt every day. If you have not learnt it, you have wasted the day. So if you learn one new thing, it can be anything. एक नया फिल्टर ढूंढ लिया, वो भी एक नई इन्वेंशन है। अब बच्चों को बच्चों की भाषा में समझाना पड़ेगा ना, राइट। एक नया ऐप डाउनलोड करके सीख लिया, वो भी एक नई चीज है। But if it is improving your productivity, right? If it is improving your क्योंकि guiding principle has to be your goal. New things can't divert you from your goal. Guiding principle has to be a goal, right? You set a goal and then learn one new thing so that you can come nearer to that goal. If you will learn new things every day, see in 1 year you will learn 365 new things, right? By the time you will pass out, you would have learned 1000 new things, which will definitely take you much ahead than those people who did not learn those new things every day, right? जिन्होंने हर रोज एक नई चीज नहीं सीखी, उनसे तो आप आगे निकल ही जाओगे ना, right? तो this way, you know, behavioral change must come. अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो जैसे बड़े लोग रहते हैं, आपको भी वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा, right?
कभी उनकी लाइफ को स्टडी करिए. देयर आर सो मेनी बुक्स विच सेज हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, राइट? तो यू शुड ऑलवेज वर्क टुवर्ड्स getting those habits into your daily life. Okay, so every day, because of the paucity of time, we are not going into these details. And next is, change the attitude. ये attitude क्या होता है? What is attitude? आप लोग सब बोलते हो attitude है, उसमें attitude है. What do you mean by attitude? ये होता क्या है? मेरी क्लास में ना सारे आंसर सही होते हैं. In my class all answers are correct. तो यहाँ पे ये 3 हमारे लड़के बैठे हैं जी, जो आपस में बातें कर रहे हैं. खड़े हो जाओ जी तीनों. हाँ, ग्रीन पट्टी वाले, उसके साथी जिन्होंने गले में लगा रखा है, और उससे अगले. बताओ जी एटीट्यूड. खड़े हो जाओ भाई. एटीट्यूड क्या होता है बताओ. यस, व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड? द वे ऑफ बिहेविंग. एक्सलेंट. ताली बजाओ इसके लिए. कहां से इतने इंटेलिजेंट बच्चे पकड़ के लाते हो सर, राइट? बहुत बढ़िया. बट बेटा बिहेविंग इज द लास्ट पार्ट. बिहेविंग से पहले एटीट्यूड के कुछ और पार्ट्स भी हैं, राइट? सो वो दोनों खड़े किए हैं ना, वो बताएंगे. हाँ बताओ जी. हाँ. चलो गुड. एटीट्यूड. एटीट्यूड को आप कंफ्यूज करते हो किसी और चीज से, राइट? आप प्राउड से कंफ्यूज करते हो. ऐसा नहीं है. वो एक अलग चीज है. एटीट्यूड जो है, प्लीज सिट डाउन. एटीट्यूड इज योर फेवरेबलनेस और अनफेवरेबलनेस टुवर्ड्स एनीथिंग, राइट? कुछ भी हो सकती है वो. उसके प्रति आपका पॉजिटिव या नेगेटिव, फेवरेबलनेस या अनफेवरेबलनेस, दैट इज एटीट्यूड. एंड इट कंप्राइजेज ऑफ 3 पार्ट्स. चलो वो क्लासरूम नहीं लेनी हमने, राइट? सो आई एम नॉट गोइंग टू दैट क्लास. बट एटीट्यूड का बिहेवियर जो है लास्ट पार्ट होता है. बिहेवियर हमारे एटीट्यूड से निकल के आता है. गॉट इट? तो इसलिए किस तरह से हम बिहेव करते हैं ये इस पे डिपेंड करेगा कि हम उसके प्रति फेवरेबल कितने हैं. तो अगर हम अनफेवरेबल हैं तो देन इन दैट केस यू शुड ट्राई टुवर्ड्स बिकमिंग मोर फेवरेबल टुवर्ड्स योर गोल्स. तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी आइडेंटिफाई द गोल्स. हम गोल्स को ढूंढे कैसे? ये तो हमने कह दिया, आइडेंटिफाई द गोल्स. आर देयर स्पेसिफिक वेज एंड मींस बाय व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई द गोल्स? रजनीश, ये पीपीटी जो है ना, इसको फ्री वाइड सर्कुलेशन में डाल देना, हर बच्चे के पास पहुंचा देना व्हाट्सएप से. कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी पीपीटी हमेशा शेयर करके जाता हूं. तो द बेसिक आइडिया इज दैट हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट समवेयर इफ यू डोंट नो वेयर योर गोल्स, राइट? Goals give you a life direction. Basically, in the goals, you have to first of all set a vision for yourself and find a direction. देखिए, डायरेक्शन सही होनी चाहिए, स्पीड तो कम ज्यादा होती रहती है, राइट? हमें अपने जीवन को किस तरफ लेके जाना है, उसकी डायरेक्शन हमें सही रखनी चाहिए. स्पीड तो कम ज्यादा होती रहती है, कभी हम ज्यादा होते हैं, तेज चलते हैं, कभी हम स्लो चलते हैं. सो दिस वे वी मस्ट रियली से डिफाइन आवर गोल्स. आज सब लोग बैठ जाना, एक कागज पेन ले लेना, और उस पर आपके दिमाग में जितने गोल्स आते हैं ना, एक बार सारे लिख लेना. 1 2 3 4 5 6 20 आते हैं, 30 आते हैं, 50 आते हैं, जितने हैं सब लिख लो कि मैं ये चीजें अपने जीवन में या इस 1 साल में या अगले 5 साल में करना चाहता हूं या चाहती हूं, राइट? फिर उसके बाद उनकी आपने क्लस्टरिंग करनी है कि क्या इनमें से कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं जोड़ सकता हूं, राइट? फिर उसके बाद आपने समरी बना के 2 या 3 गोल्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि इनको तो मुझे करना ही है. आप देखोगे कि कुछ काम ऐसे होंगे कि आप एक काम करोगे तो 2 ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, राइट? एक बार भगवान खुश हो गए एक भगत पे, तो उन्होंने कहा कि बता तुझे क्या चाहिए. तो उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि जी मेरा पोता जो है, आप मुझे एक पोता दो, और मेरा पोता जो है वो सोने की थाली में खीर खाए, राइट? तो भगवान ने कहा तू तो बड़ा चालाक है भाई, हैं? तूने अपनी उम्र भी मांग ली, भाई इतना लंबा हो दादा बने, राइट? फिर उसके बाद तूने पैसा भी मांग लिया, अभी तेरे पास इतना पैसा हो कि सोने की थाली भी हो तेरे पास, राइट? और वो खीर खाए, राइट? तो इस तरह से आप देखोगे कि अगर उसने वो मांग लिया तो 4 चीजें ऑटोमेटिकली जुड़ गई ना. तो कई बार हम देखते हैं कि हम कंफ्यूज्ड होते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. तो अगर उसमें हमें एक चीज मिल जाती है विच विल बी द कोर, तो वी विल फाइंड के रेस्ट ऑफ थिंग्स विल फॉलो, राइट? सो यू शुड फाइंड आउट दोस 2 3 4 5 कोर थिंग्स. तो आज आप सब लोग अपने अपने गोल्स लिख लोगे, यस और नो?
चलिए, तो शाम तक रजनीश को बता देना अपने गोल्स, या नहीं बताने? बता दोगे? चलो, जो बताना चाहें बता दें, जो नहीं बताना चाहें ना बताएं। दो तरह के गोल्स होते हैं, एक होते हैं पब्लिक गोल्स, एक होते हैं पर्सनल गोल्स। पब्लिक गोल्स मींस यू एक्सप्रेस इन योर पब्लिक लाइफ, राइट? आप बता देते हो, तो जो बताना चाहो वो बता देना, जो नहीं बताना चाहो इट्स वो अपने लिए एक रील बना के रख लेना अपने पास, राइट? लिख के तो रखोगे नहीं आप, तो रील बना लेना। चलो नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग द कमिटमेंट टुवर्ड्स गोल। अब हर रोज आपने सुबह उठ के 4 बजे तो गुड मॉर्निंग भेज के सोते हैं हमारे बच्चे ऐसे भी है ना? सबसे पहले देखो, जब सुबह उठो तो पहली थॉट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो रात को सोने वाली आखिरी थॉट, और एक सुबह उठते ही पहली थॉट। ये आपकी डायरेक्शन देते हैं और ये आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को शेप करते हैं। तो इसलिए रात को सोते टाइम हमेशा अच्छी थॉट्स को के साथ ही सोना चाहिए। आपका रिसर्च कहती है कि सोने से 2 घंटे पहले तक अपने मोबाइल फोन्स या किसी भी स्क्रीन, चाहे वो टीवी स्क्रीन हो, उससे आपको 2 घंटे पहले दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें ब्लू लाइट्स होती हैं, राइट? एंड दे इंटरफेयर विद योर थॉट्स, राइट? दे इंटरफेयर विद द फंक्शनिंग ऑफ योर ब्रेन्स। तो 2 घंटे पहले आप अपने मोबाइल फोन को दूर रख दिया करो। रख सकते हो? कहां से रखेंगे, राइट? ये पानी पीने उठते हैं, उसमें भी दो मैसेज, 2 स्नैपचैट लगा के फिर सोते हैं, राइट? बट इस आदत से बाहर निकलो। और अगर स्नैप लगाते भी हो, कोई हर्ज नहीं है, कोई पाप नहीं है, राइट? अगर वो स्नैप आपके गोल्स के प्रति आपकी कमिटमेंट को स्ट्रेंथन कर रही है। अचीव करना है आपने, अपने आप को बार बार कहना है। कहने के लिए आप बार बार अपने आसपास ऐसे क्लूज दो अपने आप को कि मुझे इसको प्राप्त करना है। गॉट इट? सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू स्ट्रेंथनिंग द गोल एंड देन हैव अ रोड मैप, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। सो दिस वे ट्राई टू टेक 1 स्टेप एवरी डे। वो स्टेप छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा है तो डोंट वरी, बट रुकना नहीं है आपने, राइट? डोंट स्टॉप। मे बी यू आर स्लो, it's okay. Maybe you are fast, it's okay. But keep on moving, moving, moving. And believe me, one day you will achieve your goals. Next. Goal clarification. This we can skip, right? Next. Behavior for success. This is really very, very important. इस दुनिया में आपको सक्सेस इसलिए नहीं मिलती कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो या बहुत स्मार्ट हो, हाँ, या बहुत अमीर हो। आपको सक्सेस आपके बिहेवियर से मिलती है, राइट? सो बिहेवियर पार्ट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कौन से शब्द बोलते हो, चॉइस ऑफ वर्ड्स। हम कहते हैं ना कि वो बहुत अच्छा है और वो बहुत कम अच्छा है, राइट? तो क्या चीज होती है जिसकी वजह से हम कहते हैं भी वो बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छा नहीं है? सिर्फ शब्दों का चुनाव ही तो होता है ना। बात वही है, कोर वही है, आइडिया वही है। कम्युनिकेशन पढ़ी है ना आपने सबने? कम्युनिकेशन का प्रोसेस पता है ना? कौन बताएगा? हाँ जी, यस, स्टैंड अप। क्या नाम है? वेरी गुड, आकाश इज अ वेरी स्मार्ट एंड डायनेमिक बॉय। तो आकाश, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन कम्युनिकेशन? वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी इंटेलिजेंट सर, बहुत बढ़िया बच्चे हैं। अच्छा, आइडिया के बाद फिर नेक्स्ट क्या होता है? वेरी गुड, सिट डाउन, तालियां बजाओ इसके लिए। ठीक है जी, ये सबसे मुश्किल है, ये सबसे मुश्किल है एनकोडिंग, राइट? कि आपने कौन सा शब्द बोलना है, राइट? इस थॉट को कन्वे करने के लिए, इस आइडिया को कन्वे करने के लिए आपने कौन सा सेंटेंस बोलना है। तो इसलिए एनकोडिंग पे ध्यान दो। सर, एक बड़ा नुकसान हो गया ऑनलाइन का ना, ये पीछे से जब से ऑनलाइन हुआ कि उसमें एनकोडिंग खत्म हो गई। अब यू वाई, हमारे को तो यू लिखने के लिए वाई और यू कहते थे, अब ये यू लिखते हैं, राइट? हमारे ग्रामर, शुक्र है शेक्सपियर टाइम पे, ठीक है, अभी नहीं है आजकल, वरना बड़े परेशान हो जाते कि अंग्रेजी हमने तो कुछ और ही सीखी थी, अब तो कुछ और ही हो गई है। और सर, ये हिंदी भी अंग्रेजी में लिखते हैं, ये बड़े मजेदार है, हिंदी भी अंग्रेजी में लिखते हैं, राइट? और गूगल ने तो कमाल कर दिया जी,
हिंदी के टाइप राइटर होते थे बड़े ही ना, बहुत मुश्किल होते थे, किसी किसी को आती थी। गूगल ने ऐसे आसान कर दी, जो मर्जी लिखो फटाफट हिंदी में लिख के आ जाता है, राइट। एनकोडिंग पे टेक्नोलॉजी ने मदद करी है, बट थॉट पे तो आप ही को काम करना है ना, राइट। सो चूजिंग द राइट वर्ड, ठीक है, इट्स नाइस टू बी एक्टिव ऑनलाइन, बट सक्सेस तो ऑफलाइन ही मिलेगी ना। तो यू शुड ऑल्सो कंसंट्रेट ऑन फाइंडिंग आउट राइट वर्ड्स विच यू कैन स्पीक। आज सर इस पे काम करने की बहुत जरूरत है कि एक बच्चा 1 मिनट तक कम से कम बिना कोई गलती करे बोल सके किसी बात पे। 1 मिनट, राइट। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तो मैंने बोला ही नहीं है, राइट। 1 मिनट जिसमें कि ग्रामर की गलती ना हो, जिसमें टेंस की गलती ना हो, जिसमें नंबर्स की गलती ना हो, जिसमें जेंडर की गलती ना हो, राइट। मैंने तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे देखा लोगों को गलतियां करते हुए। हाउ इज यू, बड़ा नॉर्मल सा हो गया आजकल, हाउ इज यू, राइट। थैंक यू सो वेरी मच, कॉमन है ना ये, आप लोग लिखते ही हो ना, राइट। अब ये कौन सी अंग्रेजी है भाई? मे बी इनफॉर्मली यू कैन स्पीक, बट अगर इनफॉर्मली जब ज्यादा एक ही चीज को बार बार बोलोगे तो फॉर्मल में भी वही निकलेगी फिर वो, राइट। सो प्लीज हैव कमांड ऑन योर लैंग्वेज। इन बिहेवियर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लैंग्वेज पार्ट। तो आप लोग, जब मैंने आपको बोला कि रील बनाओ, रील बनाते टाइम आपने कोई ग्रामर की गलती नहीं करनी, उसमें कोई शब्दों की गलती नहीं करनी, राइट। रील बनाना इतना आसान काम नहीं होता। रील बनाने से पहले स्क्रिप्ट लिखते हो? नहीं लिखते ना, रील भी रैंडमली बनाते हैं ये, राइट। मैंने देखा एक वो थोड़े से ना झाड़ी सी थी, वो झाड़ी के पास से उस स्टाइल से निकल के और अपना खींच ली फोटो, फिर उस पर गाना गुना लगा लिया और बन गई रील। मैंने कहा ये क्या क्या थीम है ये आपका? नो सर, वैसे ही बस हमें यह सिचुएशन अच्छी लगी बना दी। नहीं, अगर वो भी करना है तो पहले स्क्रिप्ट होनी चाहिए। आप कौन सी रील बनाओगे, ये आपकी कौन सी इमेज आप कन्वे करना चाहते हो पब्लिक में, उसकी लाइन में होनी चाहिए, रैंडम नहीं होनी चाहिए, राइट। फिर उसमें क्या चीज आपने बोलनी है, कौन सी चीज सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, वो प्लान्ड होनी चाहिए, वो रैंडम नहीं होनी चाहिए, राइट। हैव कमांड ऑन योर लैंग्वेज। कोई भी काम करो, इट शुड बी विद अ थॉट, राइट। एंड बिहेवियर में शालीनता, रिस्पेक्ट, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो सीखो। क्लास में जब आपको टीचर जो है बोलता है कि भाई आप खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, वो इसलिए है कि भाई देखिए एक रिस्पेक्ट की आदत पड़ जाए आपको, राइट। रिस्पेक्ट की आदत पड़ जाए आपको। रिस्पेक्ट आपको मिलेगी कब? जब आपने दी होगी किसी को रिस्पेक्ट। सो यू मस्ट रियली हैव अ वेरी गुड, वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी। स्माइल्स कैन सॉल्व लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। So your body language, the way you deal, the way you talk to people, right, the way you conduct yourself, these are important. Pleasant personality होता है ना ये, right? So these are important things. तो ये एक दिन में नहीं होती हैं। आप सोचो कि भी आपका बिहेवियर कैंटीन पे और होगा और फिर एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म पे और होगा, तो ऐसा नहीं है, राइट। कैंटीन में आप ज्यादा टाइम लगाते हो तो वो पक जाता है वो बिहेवियर। तो इसलिए कैंटीन में भी यू शुड सी दैट योर बिहेवियर इज अप टू द मार्क, राइट। फिर इसमें ड्रेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। यू शुड नो व्हाट टू वेयर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। सो चॉइस ऑफ योर ड्रेस, योर पर्सनैलिटी, राइट, स्टाइल, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो थोड़ा समय इस पे भी जरूर लगाइए। ऑल दीज कंप्राइज, ऑल दीज फॉर्म व्हाट इज नोन एज बिहेवियर। तो यू मस्ट हैव अ गोल, reinforce the goal, and then behave for success, right? Consciously or subconsciously see that you are slowly moving towards the behavior of the role model which you had set for yourself. Next please. Next, conditions for collaborative learning. एक ग्रुप में काम करना जरूर सीखिए। ये इनको ग्रुप असाइनमेंट्स दिया कीजिए। आप क्लास में जो प्रोजेक्ट्स वगैरह देते हैं ना छोटे छोटे, तो प्लीज गिव देम ग्रुप असाइनमेंट्स, राइट, where they collaborate with each other and they learn how to work as a team, right? So make somebody as a team coordinator. Yes, क्या बोल रहे हैं? हमसे भी शेयर कर लो। मैंने सोचा कोई शायद इन्होंने नया टेक्निक निकाल लिया जी। लो, मैंने तो गोल बना लिया, चल। हाँ जी, चलेगी। प्लेटफॉर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट, बट द वे यू कैन कोलैबोरेट एंड यू कैन जनरेट द आउटकम, दैट इज इंपॉर्टेंट।
तो इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन हो, स्नैपचैट कोलैबोरेशन हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? प्लेटफॉर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्लेटफॉर्म्स तो सारे एक जैसे हैं. इट इज व्हाट यू डू ऑन दोस प्लेटफॉर्म्स दैट इज इंपॉर्टेंट. यस, नेक्स्ट, चेंजिंग द एटीट्यूड्स. ये प्रकृति का नियम है कि नेगेटिविटी हमेशा हारती है, पॉजिटिविटी हमेशा जीतती है, राइट? ये प्रकृति का नियम है कि प्रकृति ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, इवोल्यूशन की तरफ लेके जाती है. आज आपने एक कप चाय पी ना, चाय तो पीते होंगे आप, चलो कॉफी पी होगी, हाँ क्या पिया? कॉफी. चलिए, कॉफी पीने के लिए कितने लोगों ने कितनी मेहनत करी. आपने तो सिर्फ लास्ट मोमेंट को टच किया कि आपके पास कप में कॉफी आई, बट उस कॉफी के लिए हाउ मेनी पीपल हैव वर्कड. किसी ने घास काटी, राइट? फिर गाय या भैंस को खिलाई, फिर उसके बाद दूध निकला, फिर उसके बाद दूध आप तक पहुंचा. बीच की स्टेजेस मैं स्किप कर रहा हूं. फिर उसके बाद किसी ने कॉफी उगाई, राइट? फिर वो कॉफी बीन्स कटे, फिर वो प्रोसेस हुए फैक्ट्री में, फिर उसके बाद होलसेलर, रिटेलर उसके थ्रू आके, पैकेजिंग आके फिर आपके पास आई. एक प्रोसेस था, इसलिए कि भाई सुबह सुबह आकाश को एक कप कॉफी मिल जाए, है ना? कितने लोगों ने मेहनत करी. अगर बीच में एक भी स्टेप बीच में टूट जाता, एक भी स्टेप बीच में नेगेटिव हो जाता, तो क्या आकाश को कॉफी मिलती? नहीं मिलती ना. ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि आपको इस पॉजिटिविटी की तरफ रीइंफोर्स करना है सिस्टम को, राइट? जब आप इसके अगेंस्ट चलते हो, आप डिसरप्टिव रोल प्ले करते हो, बिलीव मी, प्रकृति आपको आउट कर देगी, आप कभी भी नहीं जीत सकते, राइट? तो इसलिए योर बिहेवियर मस्ट हैव पॉजिटिविटी इनटू इट, राइट? मस्ट हैव पॉजिटिविटी इनटू इट. नेक्स्ट, एंड नेगेटिव एटीट्यूड्स ऑलवेज इनहिबिट यू फ्रॉम सक्सेस. अर्जुन में उस टाइम नेगेटिव एटीट्यूड ही तो आया था. जब वो अपना गांडीव धनुष छोड़ बैठे थे, तो उस टाइम उनमें एक क्षण के लिए नेगेटिव एटीट्यूड ही तो आया था. वो तो उतने ही कॉम्पिटेंट थे, उतने ही कैपेबल थे. क्या सर समय है अभी? अच्छा जी. तो वो तो उतने ही कॉम्पिटेंट थे, उतने ही कैपेबल थे वो अर्जुन. तो सिर्फ एक ही चीज तो उस टाइम गड़बड़ हुई थी, दैट वाज नेगेटिव एटीट्यूड. तो सक्सेस से आपको सिर्फ एक ही चीज दूर कर सकती है, दैट इज योर ओन नेगेटिव एटीट्यूड. एक दिन में खत्म नहीं होगा वो, राइट? क्योंकि हमारे अंदर दोनों होते हैं, राक्षस भी होता है और देवता भी होते हैं. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ ऑलवेज लिव साइमल्टेनियसली इन आवर माइंड्स. सो वी हैव टू वर्क हार्ड, राइट? सो दैट वी कैन रीइंफोर्स द पॉजिटिव पार्ट ऑन डेली बेसिस and reduce the negativity on say daily basis. Next, ये दीपक चोपड़ा की कुछ लॉज हैं. लास्ट में दीपक चोपड़ा ने भी कर्मा की बात करी है, राइट? सो यू ऑल मस्ट रीड गीता. इनको सर एक एक गीता गिफ्ट करिए, सब बच्चों को डाउनलोड करवाइए इनके फोन पे, राइट? और इन्हें उसके मैसेज जरूर कन्वे करिए. आजकल तो समरी गीता भी आ गई है, शॉर्ट फॉर्म में भी गीता आ चुकी है, राइट? जिसमें 700 श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कुछ श्लोक सी जो आपकी लाइफ स्टेज के लिए इंपॉर्टेंट है वही पढ़ने चाहिए. बिकॉज यू नो यू शुड नो द लॉ ऑफ कर्मा. तो लॉ ऑफ कर्मा वेरी क्लियरली स्टेट्स कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज गोइंग टू बी ए रिएक्शन, राइट? सो इफ यू वांट सक्सेस फॉर दिस पर्पस, योर एक्शन, if you want success as a reaction, your action should be in such a way that you can get that output, right? If you will sow negative seeds, you will get negative results. If you will sow positive seeds, you will get positive results, right? तो आज जब के सेशन की शुरुआत हो रही है, right? We all look forward to getting very motivated, positive boys and girls. जब सुबह उठ के कॉलेज की तरफ आओ, तो इतनी खुशी से आओ कि आज तो पता नहीं क्या मजेदार बात होने वाली है कॉलेज में, राइट? इस तरह चमक के आओ, बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी. ये नहीं कि हाय आज भी कलेश है, उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, राइट? नो, राइट? कम विद एनर्जी, कम विद पॉजिटिविटी. और जब खुशी से आओगे तो फिर आप देखोगे आपका दिन भी बदल जाएगा. हाँ, आपके हालात भी बदल जाएंगे, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा, राइट? तो इसलिए हमेशा डांस करते हुए आया करो, हमेशा खुश होकर आया करो, राइट? हमेशा एक ऑब्जेक्टिव के साथ आया करो कि आज हमने ये चीज अचीव करनी है, राइट? दिस इज व्हाट इज गोइंग टू रीइंफोर्स मी एंड आई हैव द कैपेबिलिटी.
अपने आप को रोज कहा करो आई कैन, राइट, मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, राइट। तो व्हेन यू विल हैव दिस पॉजिटिविटी, बिलीव मी, everything will start falling in line with what you want to achieve. Your dreams will come true. You will also make a success of your career. With this, thank you very much. You have been an absolute... You have been an absolutely amazing audience. So next 10, 5, 10, 15, 20, jitna bhi samay lage, no issues, right? We are here to respond to your queries. If you have any question, any thought that comes to your mind, right, I would be very happy to discuss with you, to talk to you, right? Yeah. अचीव करना है, अपने अपने आप को बार बार कहना है। कहने के लिए आप बार बार अपने आसपास ऐसे क्लूज दो अपने आप को कि मुझे इसको प्राप्त करना है। Got it? So this is how you will be able to strengthening the goal, and then have a road map. Step by step, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। So this way, you know, try to take one step every day. वो स्टेप छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा है तो डोंट वरी, बट रुकना नहीं है आपने, राइट? डोंट स्टॉप। मे बी यू आर स्लो, इट्स ओके, मे बी यू आर फास्ट, इट्स ओके, बट कीप ऑन मूविंग मूविंग मूविंग, एंड बिलीव मी, वन डे यू विल अचीव योर गोल्स। नेक्स्ट, goal clarification. This we can skip, right? Next, behavior for success. This is really very very important. इस दुनिया में आपको सक्सेस इसलिए नहीं मिलती कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो या बहुत स्मार्ट हो, हाँ, या बहुत अमीर हो। आपको सक्सेस आपके बिहेवियर से मिलती है, राइट? सो बिहेवियर पार्ट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कौन से शब्द बोलते हो, चॉइस ऑफ वर्ड्स। हम कहते हैं ना कि वो बहुत अच्छा है और वो बहुत कम अच्छा है, राइट? तो क्या चीज होती है जिसके थ्रू, जिसकी वजह से हम कहते हैं भी वो बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छा नहीं है? सिर्फ शब्दों का चुनाव ही तो होता है ना। बात वही है, कोर वही है, आइडिया वही है। कम्युनिकेशन पढ़ी है ना आपने सबने? कम्युनिकेशन का प्रोसेस पता है ना? कौन बताएगा? हाँ जी, यस, स्टैंड अप। क्या नाम है? वेरी गुड, आकाश इज अ वेरी स्मार्ट एंड डायनेमिक बॉय। तो आकाश, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन कम्युनिकेशन? वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी इंटेलिजेंट सर, बहुत बढ़िया बच्चे हैं। अच्छा, आइडिया के बाद फिर नेक्स्ट क्या होता है? वेरी गुड, सिट डाउन, तालियां बजाओ इसके लिए। ठीक है जी, ये सबसे मुश्किल है, ये सबसे मुश्किल है एनकोडिंग, राइट? कि आपने कौन सा शब्द बोलना है, राइट? इस थॉट को कन्वे करने के लिए, इस आइडिया को कन्वे करने के लिए आपने कौन सा सेंटेंस बोलना है। तो इसलिए एनकोडिंग पे ध्यान दो। सर एक बड़ा नुकसान हो गया ऑनलाइन का ना, ये पीछे से जब से ऑनलाइन हुआ कि उसमें एनकोडिंग खत्म हो गई। अब यू वाई, हमारे को तो यू लिखने के लिए वाई और यू कहते थे, अब ये यू लिखते हैं, राइट? हमारे ग्रामर शुक्र शेक्सपियर टाइम पे, ठीक है, अभी नहीं है आजकल, वरना बड़े परेशान हो जाते कि अंग्रेजी हमने तो कुछ और ही सीखी थी, अब तो कुछ और ही हो गई है। और सर ये हिंदी भी अंग्रेजी में लिखते हैं, ये बड़े मजेदार है, हिंदी भी अंग्रेजी में लिखते हैं, राइट? और गूगल ने तो कमाल कर दिया जी। हिंदी के टाइप राइटर होते थे बड़े ही ना, बहुत मुश्किल होते थे, किसी किसी को आती थी। गूगल ने ऐसे आसान कर दी, जो मर्जी लिखो फटाफट हिंदी में लिख के आ जाता है, राइट? एनकोडिंग पे टेक्नोलॉजी ने मदद करी है, बट थॉट पे तो आप ही को काम करना है ना, राइट? सो चूजिंग द राइट वर्ड। ठीक है, इट्स नाइस टू बी एक्टिव ऑनलाइन, बट सक्सेस तो ऑफलाइन ही मिलेगी ना। तो यू शुड ऑल्सो कंसंट्रेट ऑन फाइंडिंग आउट राइट वर्ड्स विच यू कैन स्पीक। आज सर इस पे काम करने की बहुत जरूरत है कि एक बच्चा 1 मिनट तक कम से कम बिना कोई गलती करे बोल सके किसी बात पे। 1 मिनट, राइट? 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तो मैंने बोला ही नहीं है, राइट? 1 मिनट जिसमें कि ग्रामर की गलती ना हो, जिसमें टेंस की गलती ना हो, जिसमें नंबर्स की गलती ना हो, जिसमें जेंडर की गलती ना हो, राइट? मैंने तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे देखा लोगों को गलतियां करते हुए। हाउ इज यू, बड़ा नॉर्मल सा हो गया आजकल, हाउ इज यू, राइट? थैंक यू सो वेरी मच, कॉमन है ना ये, आप लोग लिखते ही हो ना, राइट?
अब ये कौन सी अंग्रेजी है भाई? मे बी इनफॉर्मली यू कैन स्पीक, बट अगर इनफॉर्मली जब ज्यादा एक ही चीज को बार बार बोलोगे तो फॉर्मल में भी वही निकलेगी फिर वो, राइट? सो प्लीज हैव कमांड ऑन योर लैंग्वेज. इन बिहेवियर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लैंग्वेज पार्ट. तो आप लोग, जब मैंने आपको बोला कि रील बनाओ, रील बनाते टाइम आपने कोई ग्रामर की गलती नहीं करनी, उसमें कोई शब्दों की गलती नहीं करनी, राइट? रील बनाना इतना आसान काम नहीं होता. रील बनाने से पहले स्क्रिप्ट लिखते हो? नहीं लिखते ना. रील भी रैंडमली बनाते हैं ये, राइट? मैंने देखा एक वो थोड़े से ना झाड़ी सी थी, वो झाड़ी के पास से स्टाइल से निकल के और अपना खींच ली फोटो, फिर उस पर गाना गुना लगा लिया और बन गई रील. मैंने कहा ये क्या क्या थीम है ये आपका? नो सर, वैसे ही बस हमें यह सिचुएशन अच्छी लगी बना दी. नहीं, अगर वो भी करना है तो पहले स्क्रिप्ट होनी चाहिए. आप कौन सी रील बनाओगे, ये आपकी कौन सी इमेज आप कन्वे करना चाहते हो पब्लिक में, उसकी लाइन में होनी चाहिए, रैंडम नहीं होनी चाहिए, राइट? फिर उसमें क्या चीज आपने बोलनी है, कौन सी चीज सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, वो प्लान्ड होनी चाहिए, वो रैंडम नहीं होनी चाहिए, राइट? हैव कमांड ऑन योर लैंग्वेज. कोई भी काम करो, इट शुड बी विद अ थॉट, राइट? एंड बिहेवियर में शालीनता, रिस्पेक्ट, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. वो सीखो. क्लास में जब आपको टीचर जो है बोलता है कि भाई आप खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, वो इसलिए है कि भाई देखिए एक रिस्पेक्ट की आदत पड़ जाए आपको, राइट? रिस्पेक्ट की आदत पड़ जाए आपको. रिस्पेक्ट आपको मिलेगी कब? जब आपने दी होगी किसी को रिस्पेक्ट. सो यू मस्ट रियली हैव अ वेरी गुड, वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी. स्माइल्स कैन सॉल्व लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट? So your body language, the way you deal, the way you talk to people, right? The way you conduct yourself, these are important. Pleasant personality होता है ना ये, right? So these are important things. तो ये एक दिन में नहीं होती हैं. आप सोचो कि भाई आपका बिहेवियर कैंटीन पे और होगा और फिर एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म पे और होगा, तो ऐसा नहीं है, राइट? कैंटीन में आप ज्यादा टाइम लगाते हो तो वो पक जाता है वो बिहेवियर. तो इसलिए कैंटीन में भी यू शुड सी दैट योर बिहेवियर इज अप टू द मार्क, राइट? फिर इसमें ड्रेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट? यू शुड नो व्हाट टू वेयर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. सो चॉइस ऑफ योर ड्रेस, योर पर्सनैलिटी, राइट? स्टाइल, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो थोड़ा समय इस पे भी जरूर लगाइए. ऑल दीज कंप्राइज, ऑल दीज फॉर्म व्हाट इज नोन एज बिहेवियर. तो यू मस्ट हैव अ गोल, reinforce a goal, and then behave for success, right? Consciously or subconsciously see that you are slowly moving towards the behavior of the role model which you had set for yourself. Next please. Next, conditions for collaborative learning. एक ग्रुप में काम करना जरूर सीखिए. ये इनको ग्रुप असाइनमेंट्स दिया कीजिए. आप क्लास में जो प्रोजेक्ट्स वगैरह देते हैं ना छोटे छोटे, तो प्लीज गिव देम ग्रुप असाइनमेंट्स, राइट? where they collaborate with each other and they learn how to work as a team, right? So make somebody as a team coordinator. Yes, क्या बोल रहे? हमसे भी शेयर कर लो. मैंने सोचा कोई शायद इन्होंने नया टेक्निक निकाल लिया जी. लो मैंने तो गोल बना लिया. चल, हाँ जी, चलेगी. प्लेटफॉर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट? बट द वे यू कैन कोलैबोरेट एंड यू कैन जनरेट द आउटकम, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन हो, स्नैपचैट कोलैबोरेशन हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? प्लेटफॉर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट. प्लेटफॉर्म्स तो सारे एक जैसे हैं. इट इज व्हाट यू डू ऑन दोस प्लेटफॉर्म्स दैट इज इंपॉर्टेंट. यस, नेक्स्ट, चेंजिंग द एटीट्यूड्स. ये प्रकृति का नियम है कि नेगेटिविटी हमेशा हारती है, पॉजिटिविटी हमेशा जीतती है, राइट? ये प्रकृति का नियम है कि प्रकृति ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, इवोल्यूशन की तरफ लेके जाती है. आज आपने एक कप चाय पी ना, चाय तो पीते होंगे आप, चलो कॉफी पी होगी. हाँ, क्या पिया? कॉफी. चलिए, कॉफी पीने के लिए कितने लोगों ने कितनी मेहनत करी. आपने तो सिर्फ लास्ट मोमेंट को टच किया कि आपके पास कप में कॉफी आई, बट उस कॉफी के लिए हाउ मेनी पीपल हैव वर्कड. किसी ने घास काटी, राइट? फिर गाय या भैंस को खिलाई, फिर उसके बाद दूध निकला, फिर उसके बाद दूध आप तक पहुंचा. बीच की स्टेजेस मैं स्किप कर रहा हूं. फिर उसके बाद किसी ने कॉफी उगाई, राइट? फिर वो कॉफी बीन्स कटे, फिर वो प्रोसेस हुए फैक्ट्री में,
फिर उसके बाद होलसेलर, रिटेलर, उसके थ्रू आके पैकेजिंग आके फिर आपके पास आई। एक प्रोसेस था, इसलिए कि भाई सुबह सुबह आकाश को एक कप कॉफी मिल जाए, है ना। कितने लोगों ने मेहनत करी। अगर बीच में एक भी स्टेप बीच में टूट जाता, एक भी स्टेप बीच में नेगेटिव हो जाता, तो क्या आकाश को कॉफी मिलती? नहीं मिलती ना। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि आपको इस पॉजिटिविटी की तरफ रीइंफोर्स करना है सिस्टम को, राइट। जब आप इसके अगेंस्ट चलते हो, आप डिसरप्टिव रोल प्ले करते हो, बिलीव मी प्रकृति आपको आउट कर देगी, आप कभी भी नहीं जीत सकते, राइट। तो इसलिए योर बिहेवियर मस्ट हैव पॉजिटिविटी इनटू इट, राइट, मस्ट हैव पॉजिटिविटी इनटू इट। नेक्स्ट, एंड नेगेटिव एटीट्यूड्स ऑलवेज इनहिबिट यू फ्रॉम सक्सेस। अर्जुन में उस टाइम नेगेटिव एटीट्यूड ही तो आया था, जब वो अपना गांडीव धनुष छोड़ बैठे थे, तो उस टाइम उनमें एक क्षण के लिए नेगेटिव एटीट्यूड ही तो आया था। वो तो उतने ही कॉम्पिटेंट थे, उतने ही कैपेबल थे। क्या सर समय है अभी? अच्छा जी। तो वो तो उतने ही कॉम्पिटेंट थे, उतने ही कैपेबल थे वो अर्जुन। तो सिर्फ एक ही चीज तो उस टाइम गड़बड़ हुई थी, दैट वाज नेगेटिव एटीट्यूड। तो सक्सेस से आपको सिर्फ एक ही चीज दूर कर सकती है, दैट इज योर ओन नेगेटिव एटीट्यूड। एक दिन में खत्म नहीं होगा वो, राइट, क्योंकि हमारे अंदर दोनों होते हैं, राक्षस भी होता है और देवता भी होते हैं। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ ऑलवेज लिव साइमल्टेनियसली इन आवर माइंड्स। सो वी हैव टू वर्क हार्ड, राइट, so that we can reinforce the positive part on daily basis and reduce the negativity on say daily basis. Next, ये दीपक चोपड़ा की कुछ लॉज हैं। लास्ट में दीपक चोपड़ा ने भी कर्मा की बात करी है, राइट। सो यू ऑल मस्ट रीड गीता। इनको सर एक एक गीता गिफ्ट करिए, सब बच्चों को डाउनलोड करवाइए इनके फोन पे, राइट, और इन्हें उसके मैसेज जरूर कन्वे करिए। आजकल तो समरी गीता भी आ गई है, शॉर्ट फॉर्म में भी गीता आ चुकी है, राइट, जिसमें 700 श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कुछ श्लोक सी जो आपकी लाइफ स्टेज के लिए इंपॉर्टेंट है वही पढ़ने चाहिए, बिकॉज यू नो यू शुड नो द लॉ ऑफ कर्मा। तो लॉ ऑफ कर्मा वेरी क्लियरली स्टेट्स कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज गोइंग टू बी ए रिएक्शन, राइट। सो इफ यू वांट सक्सेस फॉर दिस पर्पस, योर एक्शन, if you want success as a reaction, your action should be in such a way that you can get that output, right. If you will sow negative seeds, you will get negative results. If you will sow positive seeds, you will get positive results, right. तो आज जब के सेशन की शुरुआत हो रही है, right, we all look forward to getting very motivated positive boys and girls. जब सुबह उठ के कॉलेज की तरफ आओ, तो इतनी खुशी से आओ कि आज तो पता नहीं क्या मजेदार बात होने वाली है कॉलेज में, राइट। इस तरह चमक के आओ, बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी। ये नहीं कि हाय आज भी कलेश है, उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, राइट, नो, राइट। कम विद एनर्जी, कम विद पॉजिटिविटी। और जब खुशी से आओगे तो फिर आप देखोगे आपका दिन भी बदल जाएगा, हाँ, आपके हालात भी बदल जाएंगे, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हमेशा डांस करते हुए आया करो, हमेशा खुश होकर आया करो, राइट। हमेशा एक ऑब्जेक्टिव के साथ आया करो कि आज हमने ये चीज अचीव करनी है, राइट। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू रीइंफोर्स मी एंड आई हैव द कैपेबिलिटी। अपने आप को रोज कहा करो आई कैन, राइट, मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, राइट। तो व्हेन यू विल हैव दिस पॉजिटिविटी, बिलीव मी, everything will start falling in line with what you want to achieve. Your dreams will come true. You will also make a success of your career. With this, thank you very much. You have been an absolute... You have been an absolutely amazing audience. So next 10, 5, 10, 15, 20, jitna bhi samay lage, no issues, right? We are here to respond to your queries. If you have any question, any thought that comes to your mind, right, I would be very happy to discuss with you, to talk to you, right? So, sir, we would like to ask you for questions. Shall I? Sure. Okay. So, we would like to know what is the story behind your successful career? It is basically the blessings of my mother, right, which is the sole guiding principle of my success. I would
I had never thought that I will become a professor. I was in corporate sector and I dreamed to be in corporate sector. हमेशा मेरे सपने हर साल बदल जाते थे, right? क्या बनना है, हर साल मैं अलग-अलग सोचता था. तो but finally, you know, I landed up as a professor, and that was just because my mothers wanted me कि आप घर के पास आ जाओ कहीं, right? And the only job that was here, that is the university job. And now you see what motivated me to work in the university. It was the discipline which I had learnt in the corporate sector, the commitment towards the goals, the result-oriented approach, right? Those things were the ones which helped me to stand apart, to be successful in my academic career. So students, you know the key to get the success, right? Right? Please be enthusiastic, no, while replying. Okay, sir. अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लिया करो, राइट? क्योंकि भगवान अपने आप को कुछ रूपों से दिखाता है, राइट? वो पता नहीं असली में है, कहाँ बैठा है, कहाँ नहीं, किसी ने एक्चुअली तो देखा नहीं है, राइट? पर वो अपने आप को मैनिफेस्ट करता है अब अलग अलग रूपों में. तो उनमें से एक रूप आपके माता पिता हैं. तो इसलिए जीवन में उनका आशीर्वाद लेकर जो काम करोगे, बिलीव मी, चाहे आपकी माँ अनपढ़ हो, चाहे कुछ भी हो, राइट? आपने उससे उसके मुंह से कहलवा दिया ना कि हाँ बेटा ये तो काम हो जाएगा, बिलीव मी वो हो ही जाएगा, राइट? तो इसलिए हमेशा अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके आपने काम करना है और आप देखना आप तरक्की की तरफ जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे. So, sir, who were your role models growing up and why? I told you, you know, it was the blessings of the parents, right? So they were the role models while at the, growing up. Then I was very lucky. I had very good teachers, right? Who groomed us, who shaped us, who motivated us. Last month, I went to a school where I had studied in my class 3, and those memories were still afresh there, right? And many things had not changed even now after 45 years. I went to say Faizabad, Kenosa Convent. I changed 9 schools in 10 years, you know. I was lucky or unlucky enough to study from so many people. Of course, lucky, sir. You got opportunity. So that way, you know, you can seek the motivation from any place, anybody. Anybody can be your guiding principle. But the point is, you need to have that eye, wherein you have to catch that person and take the good qualities from that person, which you can imbibe and which you can use for your success. And how do you deal with the failure? You see, Chandrayaan 2 was a failure, yes, right? it was. And Chandrayaan 3 is a success. Success. Yes, guys. We have achieved something. So when we have to say deal with the failures, don't take failures as something that is going to demotivate you, to break you, to depress you, right? Failure is something which you must take to empower you, to make you say find out what went wrong, and then after that taking the corrective action, right? So failure is only a part of the journey, right? When you are moving, you know, sometimes it will be highs, sometimes it will be lows. So failure should be your learning part. Failure should not be something which is a deterrent. Failure should be a springboard sitting on which you are going to jump onto the next level. And I think so the best example today is Chandrayaan 3, right? So this should be our guiding principle. So the more you will fall, the more you will get experience, right? You have heard the story of King Solomon and the spider. Yes. Right? You have heard the story now? How many of you heard? Now everybody has heard, but they won't raise their hands because you may ask, okay, tell the story, right? The moral of the story is try. At last you will succeed. Yes. So how do you handle stress and maintain a positive attitude? You see, stress has both positive as well as negative. So sometimes when it is time-bound, meeting the deadlines with a say submission of a paper or making a revision or something like that, you know, that becomes a motivator. But sometimes, you know, there are situations wherein you find that things are not happening as per your expectations. Everybody faces difficult times and has faced the stress. I think so during those times it is usually better
to take a small step backward, to take a light break, right? To be little cool, to become objective, right? To become little more sweet, right? And to look for some newer domain which can help you to cope up with that stress. All these factors will definitely eventually help you to come out of any such situation. Yes, guys. Applause, no? You're getting good suggestions. देखिए आपके जीवन में फेलियर तो आएंगे, Definitely. कभी जॉब से निकाले भी जाएंगे, ऐसा होगा, कभी ब्रेकअप्स भी होंगे, राइट? कभी Means with the emotions. राइट राइट। अब वो सब कुछ आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएगा, कुछ नया एक्सपीरियंस दे के जाएगा, राइट? अब आपने उसमें से क्या लेना है और कैसे लेना है, आई थिंक सो दैट डिपेंड्स ऑन यू। और वो एक दिन में नहीं होगा। अगर आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट नेगेटिविटी होगा तो आप उसमें से देर से निकलोगे, अगर आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट पॉजिटिविटी होगा तो आप उसमें से जल्दी निकल पाओगे। Okay. Yes. Applause, no. Then only we'll feel like to speak more, right? It's kind of dual communication. Vice and versa, right? Okay, so sir, what are the biggest mistakes you need to avoid in their career? You see, the biggest mistakes we need to avoid in our career is, first the common mistake is that we are sometimes at a wrong place, right? We intended to be something else, but we have become something else. So that can be a deterrent. Okay. So first of all, your best outcome will come when you are at the right place. So this mistake you must avoid. Number two, suppose you are at a place where you didn't want to be, right? By chance. And you end up becoming a negative personality, that would be absolutely wrong. Even in that situation now, accept the situation and see, okay, I wanted to be this, but now I am here, right? I don't take it as a mistake, I take it as another new challenge, and within that framework, again work towards positivity, right? So make a new start from that, and slowly you will find that things will change according to you. So mistakes always teach you, mistakes always give you experience. There is nothing like mistake in life, there is nothing like mistake in life, right? So please don't use the word that I am into a mistake, I have done a wrong thing. Never allow these kinds of thoughts ever to come to you, right? So there is nothing like mistake, it was an experience. Take it as an experience, and this will definitely pave a roadway for newer experiences. So be always optimistic. So do you have any advice for maintaining healthy personal and professional relationships? Oh yes, we must know the concept of maryada, right? Lord Shri Ram gave us the concept of maryada. Maryada means, what is maryada? Maryada basically means the boundary lines, the border lines, right? Yes. Which we all must know, right? Which we all must know. So in the professional life, we must know that these are the boundaries which are given to me, and respect those boundaries, and never ever expect that anything beyond the boundaries is permissible or possible. Do not breach those boundaries, and you will find you will never land up into any problem as far as, say, your relationship with the peers is concerned, or with your superiors is concerned, or with your even juniors is concerned, right? You should know who is who, and you should treat him or her according to who is who, that's all. So it's very simple. So even in your personal life also, you must know who is who. Treat mother at the stage of mother, wife at the stage of wife, yes, daughter at the stage of daughter, right? This is a very common mistake which people are doing in their personal life these days. I find, young generation is having a lot of challenge in terms of adjusting into the families, right? And the reason behind this challenge is that they do not understand these boundaries. If you know what is maryada, right? So then you will never ever have any role conflict in being a husband and in being a son, right? Both need some part of your space. Give them their due, right? And that's all. And try to maintain a balance, right? You will find there are no problems in life. This is a very common problem, right? Very common problem. When a girl moves to a new house, right?
then it's a new settings. Right? Sometimes that induction period is not very favorable, right? So in those times, you have to do these kinds of adjustments. You have to revisit the values which are conveyed to us by our ethos, right? So at that time you should know, okay, I have now left one home and I'm into a new domain. So you should know what I have to share and what I have not to share, right? Because you can't move to another domain now again. And if you move, it's another failure. And that should be avoided as far as possible, right? And how it can be done? It can be done when you will know what the boundaries are, what the maryada is. So saas hai, ma hai, right? So when we will have these kinds of understanding of the maryada, I think so our personal life will also become much more harmonious, much more easy, and much more enjoyable. Philosophy, you should follow the philosophy of karma. Being from Kurukshetra, I would say that this is the best message which probably the whole humanity can imbibe as a philosophy, right? So that can be the guiding principle. If you can understand that my wrong actions will give me wrong results, you will avoid doing those kinds of actions. Usually, we know what is going to be the result. Still we do this, right? And this happens when our, say, mind is not properly working. Why minds don't properly work? Because we create so much of disturbance in our minds, right? That is why, and how the disturbance can be avoided? It can be avoided as a result of the lifestyle. We had the concept of yoga in which, we have, say, 8 stages, and we have, say, everything aligned in such a way that it contributes towards, say, making you as a more efficient personality. I'm not going into the micro details. So what you eat, what you speak, what you read, what you talk, what you watch, everything contributes to those thoughts and your decision making process, and and shapes in your mind taking the right decisions. So work on those things, have a balanced life, have a middle path, and you will find that this philosophy definitely helps you to get better outcomes from the philosophy of karma. सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण नाम तो आपने सब सुने हुए हैं. आपको ये भी पता है सात्विक क्या होता है, राजसिक क्या होता है, तामसिक क्या होता है, राइट? बस इनके बैलेंस ही आपने बिठाने हैं, राइट? लाइफ में इनके बैलेंस ही आपने बिठाने हैं. तो आपका चाहे भोजन हो, चाहे आपके कर्म हो, चाहे आपकी सोच हो, राइट? उसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों का एक बैलेंस अगर आप समन्वय बिठा के रखोगे आप, तो मैं समझता हूँ कि आप एक पूर्ण जीवन जी पाओगे और आप एक सक्सेसफुल जीवन जी पाओगे. You see, many a times, you have to work in teams, right? You would have your own thoughts in place. Absolutely. Others would also have their own thoughts in place. So you must listen very patiently and very carefully to what others feel. Then try to put yourself into the others' shoes and see what is the reason why, say, this thought is coming from the other person in this way, right? So once you will have these, once you will have this sensitivity, right, you will be able to find a middle path which will be acceptable to both the parties as a team, right? So this is how you can build cooperation between people. So, sir, what has been your biggest challenge and how did you come over it? Challenges come on everyday basis. Biggest Students who are like willing to ask this question. Yes, anyone? Any questions? Yes. Akash ka bhai. Yes. मैंने कहा ना, मैंने ठीक पहचाना भाई, 3 बच्चे ना जी ये बढ़िया बैठे हुए हैं. Yes. Sir, you told us about motivation and all, but sir, how to be motivated? How to be motivated always? Sir, Why? 2 दिन मन करता है काम करना है, तीसरे दिन Focus, he said to do meditation, yoga. योगा मेडिटेशन तो मैडम ये
नहीं करेंगे। मैंने तो सिंपल बताया था आपको कि अपने आपको हर रोज कहना पड़ता है कि दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव, राइट? तो व्हेन यू सेट योर गोल्स एंड यू वांट टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, you have to give clues to your own mind on everyday basis, right? और वो क्लूज कहीं से भी आ सकते हैं, वो क्लूज कहीं से भी आ सकते हैं। एक तो उस क्लूज को स्ट्रेंथन करने के जितने भी सजेशन हैं उनको यूज करो आप, राइट? छोटे छोटे सजेशंस हैं, सिंपल, जो आपकी भाषा में कहूँ तो आप स्टेटस और डीपी अपनी उसको रीइंफोर्स करने के लिए लगाओ आप, राइट? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे वो चीज़ें फॉलो करो, वो चीज़ें देखो जो आपको उसमें मदद करती हैं, ठीक है? दूसरा, वो बुक्स पढ़ो जो आपको मदद करेंगी उसको अचीव करने के लिए। तो मोटिवेशन आप देखोगे लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाना है तो मुश्किल, बट आप कर सकते हो बाय केयरफुल ट्रेनिंग ऑफ माइंड। ये प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण से भी पूछा था कि मन बड़ा चंचल है, राइट? बड़ी जल्दी डाइवर्ट हो जाता है, तो क्या करें? उसका भी एक सिंपल सा रीज़न था कि स्लोली यू नो, पुनः पुनः आप जब किसी बात की आवृत्ति करोगे तो आपका मन उसके लिए ज़रूर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये चंचलता आप ही ने ख़त्म करनी है, किसी और ने नहीं करनी है। और दूसरा, फिर जो चीज़ें आपको बहका रही हैं उनसे दूरी भी आपने ही बनानी है, राइट? तो यानी जो चीज़ें आपको चाहिए उनको स्ट्रेंथन करना है, जो चीज़ें परेशान कर रही हैं उसको धीरे धीरे उससे आपने दूरी बनानी है। तो आई बिलीव कि यू विल डेफिनेटली बी एबल टू रिमेन मोटिवेटेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब 100 मीटर की रेस होती है ना, तो उसमें जब धावक दौड़ रहे होते हैं तो सबसे मुश्किल आखिरी के 10 मीटर हो जाते हैं, राइट? उस वक्त भी वो मोटिवेशन मेंटेन करके रखनी पड़ती है कि मुझे ये जीतनी है रेस। तो चाहे वो 10 सेकंड की रेस हो और चाहे वो जिंदगी की रेस हो, दोनों में रूल सेम ही है, राइट? रूल सेम ही है कि आपने अपने मन को बार बार कहना है कि आई हैव टू सक्सीड, आई हैव टू सक्सीड, आई हैव टू सक्सीड, एंड यू हैव टू डू ऑल स्मॉल एंड बिग एक्शंस which are going to help you to reinforce these thoughts. Both are not different. पहली चीज, आप अपने माइंड से ये निकाल दो, पता नहीं किसने इनको बहका दिया बच्चों को कि जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो एक्चुअल में नहीं होता है ना। आपके माइंड में ऐसा आ गया, इंजीनियरिंग वालों के माइंड में खासकर आ जाता है, मैनेजमेंट वालों को भी कह दिया जाता है कि नहीं भाई, एक्चुअल लाइफ तो बहुत अलग होती है, वो ये अलग होती है, राइट? दोनों एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, राइट? बोथ आर इंपॉर्टेंट। सो एजुकेशन विल गिव यू द थ्योरेटिकल, फिलोसॉफिकल, इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल पार्ट. Experience will give you the actual happening part, right? So during experience, if you would have had education, your experience will be much more enriching. And if you will have experience with education, your education will also be much more enriching. But if you will rely on anyone alone, right, then I think you will be say missing something. So if you have education, right, do look for experience with it. I give you a very simple example. अब नीतीश जी ने क्या कर रखा है कि इंजीनियरिंग वालों के लिए तो लैब बना रखी है, आर्किटेक्चर वालों के लिए लैब बना रखी है, होम साइंस के लिए लैब है, बीएड वालों के लिए लैब है। अभी बेचारे हमारे मैनेजमेंट वाले, कॉमर्स वाले, इनकी कोई लैब ही नहीं है जी, है ना? नहीं है ना? So we do have. तो हमारी लैब क्या है? हमारी लैब क्या है? ये जो इसने क्वेश्चन पूछा, हमारी लैब एक्सपीरियंस है, हमारी लैब जिंदगी है, राइट? एक अच्छा टीचर कौन है? जो आपको जिंदगी से एजुकेशन को जोड़ के पढ़ा सकता है, राइट? तो एक अच्छे किसी को भी गुरु नहीं मान लेना, आपने गुरु को पहले पहचानना है कि गुरु बनने लायक भी है कि नहीं है, राइट? तो जो आपको जिंदगी के साथ जोड़ के एजुकेट कर सकता है वो सच्चा गुरु है, राइट? तो इसलिए एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन बोथ गो हैंड टू हैंड, बोथ गो टुगेदर, और दोनों को साथ लेके चलो आप, ठीक है? गुड। Yes. हाँ जी, लैब आज हमने बना दिया, आपके एक्सपीरियंसेस जो स्टूडेंट्स के साथ शेयर हो रहे हैं, ये उसी लैब का पार्ट। जी जी जी, थैंक यू। Yes, anyone? He or she will keep on giving you that negativity, but whether that negativity has to influence you, that is in your hand, okay? That is in your hand. So even if you can't avoid that person, right, then you should know where the boundary line has to be made so that that negativity does not become a part of your personality.
Okay? So sometimes there can be situations, your boss can be such that you can't avoid, and you have to live with that situation. But then you should know, okay, this is the level of negativity which I am going to allow in my say sphere. But beyond that, my basic personality still remains positive. Okay? How do you handle criticism and use it to improve? Criticism is one of the most wonderful things, that you can have. I made a Facebook post, right? And on that Facebook post, somebody commented, he's a very useless person, doesn't deserve to be at this place, right? And I was so happy, I liked it and I said, thank you so much. मैंने delete नहीं किया वो comment, that comment is there, right? So criticism always helps you to do some introspection, right? That why this criticism has come. Whenever people criticize you, they are looking at that dimension of your personality which you might have missed yourself. So don't take criticism negatively, take criticism as a positive thing, and criticism can also help you in improving and making yourself better. So I would like to thank you, sir, for your precious time, and thank you so much once again. Thank you, it's been a great pleasure. Thank you.